Hello, guys, and welcome back to our channel. So, we just witnessed something great today, and there were a lot of dominance from the bowlers' point of view, and there were a lot of things going on today in this game. So, yes, I'm talking about the first day of the first test of the BGT, which is happening in Perth currently. And today was the first day of the game, and it was a pretty eventful day today as we saw India getting bundled, India winning the toss, choosing to bat first. Then uh, there was nothing much to start off with India having a collapse at the start, which eventually ended on 150. And then Australia also had a collapse. They also did not get used to the wicket or didn't, क्या बोलते हैं उसको, they were not able to judge the wicket also on the basis of the first innings, and due to which Australia ended the day at 67 for 7 with Bumrah playing the key destroyer in that. So, yes, we'll dive into this video now. So, yes, Nikhil, do you want to start with the Indian innings? Yeah, hello everyone. So it was a very eventful day, as Mohit said, because there is nothing much to say actually. But saying that, I now understood that there is many more things to say about the Indian batting, the way some players got out and everything. But first of all, kudos to Rishabh Pant and the debutant, right, Nitish Yes, Kumar Reddy. yes, They both played very well. Other than that, I don't think. Sorry. Also, KL Rahul at the start, he was looking very stable. Actually, and I think that if he wouldn't have given that dismissal, unfortunate dismissal, I would say. But yeah, if it wasn't out, then he India could have scored around 200 or above. yes, yes, And definitely. but yeah, other than that, Virat and Devdutt Padikkar, Yashasvi Jaiswal, they had a start. They played a few bowls, but couldn't judge the wicket, and they got out for. I would say अपना Jaiswal got out on a ball where he wanted to play a shot for a four or boundary, right? Hmm. Like he plays in the home conditions, but he forgot that he's in Australia, so he gave his wicket. Other than that, I didn't see anybody's wicket because I was working today. So, Mohit, can you give us an brief point how everyone got out? Yes, the initial part of the game, the first session, if we see, it was dominated by the fast. Actually the whole game was dominated by the fast bowler. But if you see the first session, right? So the new ball was doing the tricks against the batting order, and there were a couple of chances where the ball was going having an extra bounce, or it was going like a normal Perth pitch, which is a very pacey wicket, as everyone knows. And yes, I think especially for Jaiswal and Padikkal, to be honest, I think this is their first ever game in Australia. So to be fair to them, they are not used to this condition because सिर्फ देखने से you cannot judge the thing, right? So by playing, they will, I think, get used to it because Jaiswal innings was only 8 runs, 8 balls, and whereas for Devdutt Padikkal, actually, if you see, वो थोड़ा struggle कर रहा था because वो जो pace वगैरह था जो wicket का, and the way Stark and Hazelwood were bowling, you should have seen actually because they were bowling pretty tight because वो लोग का stump line जो था वो उससे जा ही नहीं रहे थे बाहर, and they were not giving any freedom for scoring runs. So वो उसके वजह से, एंड पडिक्कल ऑल्सो, द कमेंटेटर ने भी मेंशन किया था कि पडिक्कल का जो फुट मूवमेंट है ना, इट इज अ बिट स्लो बिकॉज वो उसके बारे में बाद में बोलता हूँ, वो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, बट यस, अदर देन दैट आई थिंक कोहली वाज आल्सो लुकिंग गुड इन हिज 12 बॉल इनिंग्स जो उसने खेला. अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट ड्यू टू एक्स्ट्रा बाउंस बिकॉज वो
उसने वो लेंथ वगैरह बराबर जज किया था, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा बाउंड वो थोड़ा सा बॉल चढ़ के आया ऊपर, एंड दैट ग्लव्स लग के वो स्लिप में चले गया. And after that, KL Rahul's unfortunate wicket, which we saw, which is all over the social media today. And Right. yes, and also I think Jurel was also playing well, but वही है कि most of the players actually got out on edge to slips. So that is the main key dismissals here. कि, slip या keeper के पास ही catch गया है most of the लोगों का. And also Yes. And also Nitish Kumar Reddy, kudos to him and Harshit Rana for making their debuts today. Nitish Kumar played top scorer. He was the top scorer today, scored 41 runs. He was there till the end, but unfortunately he got out while trying to score runs. And eventually with that, India bundled out for 150. Yeah. So, what were your thoughts when everybody was getting out on some or the other way? Everybody was getting out, right? So, what were your thoughts at that time regarding everything I'm asking? यस, आई थिंक इनिशियली जो था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं. मतलब ऐसे लग रहा था, अभी देख के हम लोग को ऐसे लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल जो सीधा सीधा बॉल है, ये लोग को सीधा बॉल खेलने नहीं हो रहा है. बट द थिंग इज कि आई मीन वही है कि पिच से बॉलर्स को ज्यादा मदद था. अपार्ट फ्रॉम आई थिंक केएल राहुल एंड के एंड पंत, तो वो अपने स्टाइल से ही खेलता था, उसको बोल के कुछ वो है नहीं. वो कोई भी पिच पे ऐसे ही खेलता है, काउंटर अटैक. तो ऑल्सो नीतीश कुमार रेड्डी जैसे मैंने मेंशन किया, सो दे वर द ओनली टू प्लेयर्स दैट वर, मतलब जो ऐसे लग रहा था कि अच्छे से उनको समझ में आ रहा है पिच. अदर देन दैट जो है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दे स्ट्रगल्ड ऑन द विकेट. एज आई मेंशन कि पडिक्कल स्पेशली. ओके, तो अभी पडिक्कल के पॉइंट पे आता हूँ कि दे जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने बताया कि व्हेन प्लेइंग द बॉल, राइट, सो जो अपना फ्रंट फुट रहता है दैट शुड बी ऑन द ग्राउंड पूरा, एंड इट इट क्रिएट्स अ स्टेबल बेस फॉर द बैट्समैन टू प्ले. सो इसके पॉइंट में क्या हो रहा था कि व्हेन ही वाज ट्राइंग टू प्ले द बॉल ना, तो उसका ना ऐसे हील पे ही रखता था पैर. ऐसा पूरा नीचे नहीं रखता था जैसे हम लोग यूजुअली रखते हैं नीचे. वो उसका पैर ऐसे हील पे रहता था जब वो बॉल खेलता था. तो आई थिंक सुनील गावस्कर वाज देयर ऑन द कमेंट्री. ही सेड कि दैट मेक्स द बैट्समैन अनस्टेबल, मतलब बैलेंस नहीं रहता खेलते टाइम. सो अगर पडिक्कल का इनिंग्स Okay. देखे ना, तो वैसे ही लग रहा था कि मतलब ऐसा बैलेंस नहीं है वो, या फिर डर डर के खेल रहा है, ऐसा लग रहा था. सो So, यस. it being his first test in Australia, I think it was हाँ, क्या कह सकते हैं, it was लर्निंग फेज मतलब था. होना ही था, वैसे ही हाँ, मिलने वाला था क्या? बट यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, Yeah. मोस्ट So मोस्ट ऑफ द these are some डिसमिसल्स. technical terms, हाँ. right? Mohit, I यस. am asking overall as a fan. What were your thoughts? यस, ओवरऑल तो वापस वही न्यूजीलैंड वाला सीरीज याद आ गया. कि So मतलब यही actually, we were वापस आ गया. scared, right? हाँ. We were scared at a point कि कि अगर आप देख सकते हो, India's batting is not at the top position right now. Whatever we have witnessed in India. So यस. if we see getting toss, if we are winning the toss as a captain, I won't be क्या कहते हैं उसको, confident enough in our batting. I don't know what were the conditions and all, because 7:30 बजे उठ के मैंने मैच स्टार्ट किया. I didn't see any pitch report or anything. Just saw कि we are batting. So हम्म. it created a kind of a panic actually कि बैटिंग ही क्यों लिया है. We would हाँ, have देयर वर bowled क्वेश्चंस first, and एक्चुअली. because हाँ. our, yeah, because our bowling has department has showed that we can bowl. अगर तुम लोग बैटिंग नहीं करना चाहते मत करो, बट वी आर गोइंग टू बोल हाउ एट द टॉप. जो अपना पोजीशन है टॉप के टीम्स में आता है, वी आर गोइंग टू बोल लाइक दैट ओनली, एंड दैट इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आल्सो. बट टेकिंग बैटिंग, इट वाज अ bit risky move. I thought at that time. यस. यस, एक्चुअली देयर वर सम क्वेश्चन कि बुमराह ने व्हाई डिड ही चूज टू बैट फर्स्ट, बिकॉज इफ ही वुड हैव चोज टू फील्ड, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर कि उसको, मतलब जब भी सेकंड इनिंग्स खेलने आते तभी
मतलब पिच का एक आइडिया हो जाता है कि पिच ऐसा बिहेव करने Yes. वाला है, ये करने वाला। Yes. बट यस आई यूज मतलब ये भी था कि मतलब बुमराह को अपने टीम के ऊपर वो कैपेबिलिटीज के ऊपर ट्रस्ट था कि कर लेंगे, लड़के कर लेंगे। So yeah, if you see the past history of the Perth ground, so the average total of the first inning is around 400 or 457. हाँ। So we getting our bundled out for 100 or 150 was not a good thing for us, right? When I was looking at the match, हम लोग कितने 47 पे 4 या 3 कुछ थे. हम्म। So it was not looking good because looking from an outside perspective as a fan, so कंडीशंस तो अपने को पता ही नहीं वहाँ कैसे चल रहा है क्या है बाउंस अपने को इतना पता है कि इवन अनइवन बाउंस रहेगा पेस पे बीट होने वाले हैं सब लोग दैट इज व्हाट इज वी नो बट वहां पे कैसा सिचुएशन चल रहा है वी डोंट नो राइट सो इट वाज लुकिंग लाइक अरे तुम ऐसा ही खेलो वैसा ही खेलो बट व्हेन द सेकंड इनिंग स्टार्टेड दैट टाइम में फेल्ट कि नहीं बॉलर्स के लिए पिच अच्छा है द बैट्समैन आर नॉट गेटिंग द चांस टू प्ले हाउएवर दे वांट उनको एक सही टेम्पलेट लेके चलेंगे तो ही दे कैन बी ऑन द ग्राउंड राइट हम्म। so at that time that confidence came until then 150 was also looking a bit short right यस बिकॉज इनिशियली ना 1 रन पर ओवर पे ही इनिंग्स चल रहा था इंडिया का, वो भी एक आध ओवर में ऐसे 2-3 रन लेंगे, फिर 1-2 ओवर मेडन जा रहे थे, मतलब वो एंशियस स्टार्ट था थोड़ा कि मतलब क्या right होगा, कोई ऐसा रिस्क लेने के लिए भी ये नहीं था, मतलब रिस्क लेके भी कुछ मतलब नहीं था क्योंकि वैसे भी बॉलिंग भी अच्छा चल रहा था एंड पिच भी सपोर्ट कर रहा था। हाँ, तो वही है कि बट एक वो रहता है ना कि बॉल का शाइन निकालने के लिए कुछ तो हाथ घुमाना पड़ता है। right so you were saying that while watching the game you the camera panned on to the ball right when it hit the boundary after यस। 25 overs I guess and you were saying that तभी तब तक शाइन गया नहीं था बॉल का हाँ, नहीं गया था। इट so वाज इन द that is ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स। yeah so because that is that कि बॉलर्स को बैट्समैन को हिट करने का चांस ही नहीं मिल रहा है वो हम्म। बॉल इतना ये मूवमेंट ले रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम्म। राइट सो बट व्हाट अ डेब्यू फॉर नीतीश कुमार रेड्डी हम्म। he scored around 41 runs in 59 balls at this type of a wicket he is the only player I guess after Harshit Rana, but he scored only 5-7 from 5 balls. But he's the only player who is around 70 ka strike rate. यस। So yeah, do you want to give a brief about that because मैंने वो भी इनिंग नहीं देखी. नीतीश कुमार रेड्डी ना। Yes. यस आई थिंक उसका बहुत इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स एक्चुअली, इफ यू सी ऑन डेब्यू आल्सो ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द टीम अहेड एंड supporting Rishabh Pant who was batting with him at that time. एंड यस ही शोड मतलब उसने बहुत मैच्योरिटी दिखाया वो टाइम पे बैटिंग करते टाइम कि ऐसा रैश शॉट्स नहीं खेलना क्योंकि कोई भी ऐसे व्हेनेवर समवन इज ऑन डेब्यू सो ही इज लाइक कि मुझे रन्स करके दिखाना है, फास्ट खेल के दिखाऊंगा थोड़ा। बट यस ही गॉट द हैंग ऑफ द सिचुएशन प्रिटी अर्ली क्योंकि वो देख के आ गया था कि मतलब क्या हो रहा है। सिर्फ उसको पंच से थोड़ा एडवाइस या फिर जो भी है जो लेटेस्ट अपडेट बोलते हैं ना, जैसे जो बैट्समैन आता है अंदर, तो वो Yes. एंड यस मतलब उसका इनिंग्स भी ऐसा था कि उसने पंत के ऊपर से भी वो प्रेशर निकाल दिया था, स्कोरिंग या फिर जो क्या बोलते हैं उसको हैंडल करना है आगे का। तो दैट ऑल्सो हेल्प ऋषभ पंत क्वाइट अ बिट, बट यस all in all I can say कि it was a very responsible innings from his end, especially considering he's on debut. Yeah. So other than that, KL coming to KL. So what do you want to say about him? He played a very stable inning from the top, right? Hmm. I saw some of his game. At the start, he was playing sensible cricket, like pitch पे मतलब जैसे इंडिया में कर रहे थे गोइंग आउट एंड जस्ट हिटिंग एवरीवेयर वैसा नहीं किया किसी ने भी नहीं किया रहेगा आई होप बट या इन केएल्स इनिंग दैट आई सॉ आई थॉट ही वाज प्लेइंग वेरी सेंसिबल व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट
Yes, KL Rahul was very sensible and matlab he was trying to take the role of like what Cheteshwar Pujara used to do for India. You're like anchor Yes, role लेके चलेंगे क्योंकि at the other end and also when he was facing the bowling, the Australian opening overs, he also saw कि पिच से बहुत हेल्प मिल रहा है बॉलर्स को सो देयर इज नो नीड टू प्ले दैट फास्ट इनिंग कि मतलब थोड़ा रुक के खेलेंगे थोड़ा मतलब प्रेशर भी एब्जॉर्ब कर रहा था वो एंड मतलब एकदम बैलेंस टाइप ऑफ इनिंग्स था उसका एक टिपिकल yes, टेस्ट इनिंग्स जो रहता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर लेके जब मिल रहा है बॉल तो ही उसको मारना है उसका वो एक स्ट्रेटेजी लेके वो चल रहा था एंड इट वाज प्लेइंग ही वाज प्लेइंग रियली वेल अंटिल दैट controversial dismissal which he was given. So, yes, I think up till that point, he was playing really sensibly and also he took the responsibility because Jaiswal and he lost Jaiswal and Padikkal and also I think the wicket of Kohli also he saw at the other end. So, yes, in the first session जो 50 runs किए थे उसमें bulk of the scoring was done by KL Rahul. And he was the one actually who looked comfortable at the start also. right. And the shots he played, right, for the boundaries, those were also, I think I saw one or two. Those are also beautiful shots actually that came out of his bat. So, but starting ka chhod ke, that was a bouncer and it got hit by mistake, but it went for four. So चलेगा वो runs भी चलेगा ही, but yeah, other than that he whatever he played, so it looked very good. Other than he played I guess 2 4, so yeah, but that was a pretty unfortunate dismissal actually. Hmm. uh, do you have any thoughts about that कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए था or anything? आई थिंक बिफोर गोइंग टू दैट ना आई हैव वन पॉइंट कि वो जो केएल राहुल ने जो कवर ड्राइव मारा था वो जो शॉट वो बहुत अच्छा था मतलब वो शॉट ऑफ द मॉर्निंग जैसा था वो Right. जो हाँ सेकंड या थर्ड बाउंड्री था उसका यस कमिंग कमिंग टू द डिसमिसल कि यस इट वाज मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंपायर उसको मतलब आउट देगा करके क्योंकि जब भी उन्होंने रिप्ले व्हेन दे शोड द नॉर्मल रिप्ले राइट ड्यूरिंग द डीआरएस तो ऐसे लग नहीं Yes. रहा था कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ या कुछ हुआ है करके ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत गैप है एंड बाद में जब भी उन्होंने स्निको दिखाया तो इट शोड अ स्पाइक ठीक है तो वो भी एक पॉइंट था कि द अंपायर विच वाज ऑन द थर्ड अंपायर विच वाज देयर हु वाज लुकिंग एट दोस विजुअल्स सो ही मतलब उसने वो दूसरे ब्रॉडकास्टर्स को बोला कि शो मी अनदर एंगल क्योंकि आई सी अ स्पाइक आई जस्ट नीड टू कंफर्म वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम सो वो लोग ने बोला कि वी डोंट हैव एनी अदर एंगल्स अवेलेबल सो बाद में उन्होंने एक स्ट्रेट एंगल दिखाया जो ब्रॉडकास्टर वाला एंगल रहता है तो उसमें से भी Right. ऐसे कुछ लगा नहीं बट बाद में जब भी देखा ना वो कि उसका ना बैट जो है वो पैड पे लग गया था सो बाद में द अंपायर हैड अ कपल ऑफ लुक्स देन ही सेड कि आई थिंक आई गिव माय डिसीजन बेसिस ऑन द विजुअल्स एंड द स्नीको व्हिच वाज प्रोवाइडेड. So on basis of Yes. that, he told the on-field umpire to change his decision because I think Kettleborough था वो umpire उसने नॉट आउट दिया था वो टाइम पे एंड यस केएल राहुल वाज वेरी डिसअपॉइंट उसको ऐसा भड़का हुआ मैंने कभी देखा नहीं एक्चुअली मतलब वो बोल रहा था अंपायर को इतना बड़ा गैप है इतना बट यस तो एक एक और एक हुआ कि जब भी वो आउट होके चले गया दूसरा बैट्समैन आया वगैरह तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे ना वो डिसमिसल के बारे में तो बाद में ना अचानक से एक दूसरा एंगल भी आ गया जिसमें दिख रहा था कि वो बैट पैड पे लग गया तो वही yes, बोल हाँ what you are saying is right, because if you don't have enough evidence, so why are you giving that as an out, right? हम्म अंपायर जो था, ऑन ग्राउंड अंपायर है, उसने बोल दिया था कि इट इज अ नॉट आउट, राइट? इफ यू डोंट हैव एनी प्रूफ दैट इट इज आउट, then why are you reversing that decision, right? हम्म So that was a big takeout from here in this match, because we have seen earlier कि नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा भी ये वो, तो they are saying कि because of the insufficient evidence we are giving this as a whatever the ground umpire has given, right? यस So it was a hasty decision. यस
हेस्टी हेस्टी तो नहीं बोल सकते, बट उसने ऐसा थोड़ा बहुत देखा तो था रिप्ले, मतलब वो ऐसे आगे पीछे करके देख तो रहा था, बट वो ये कि यूजुअली बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द ऑन फील्ड कॉल ना डीआरएस के टाइम पे, या फिर अदर एक्चुअली। वर्ड्स में बोलेंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द बैट्समैन। बट यस। Actually, yeah. हाँ। But unfortunately he got out. But and we have talked about Nitish Kumar's because he was a debutant और उसने अच्छा score किया. We talked about KL, but not forgetting the Rishabh Pant, the man himself, because he has been playing consistently at that same place, and today playing that type of whatever he played, that type of a inning actually was pretty much needed at that point, right? So the हम्म। 37 रन स्कोर किए उसने 78 बॉल्स में. So यस। being there for team at crucial points is his thing right now. यस। आई थिंक ऑल्सो ही एंजॉयज दैट काइंड ऑफ प्रेशर, या फिर बोल सकते हैं वो रोल उसको बहुत अच्छा लगता है कि आई कैन मतलब टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम ऑन योर शोल्डर्स एंड गेट द टीम आउट ऑफ द ट्रबल वाला सिचुएशन जो रहता है। आई थिंक ही लाइक्स टू फेस दैट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन प्रीटी ऑफ, एंड ऑल्सो इन द रिसेंट टाइम्स आई थिंक वो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार आ चुका है। So he's Actually, used to that scenario now. So be it any condition रे, कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का पेसी विकेट हो या इंडिया का, या एशियन actually, कंडीशन yeah. में स्पिन विकेट हो, ही प्लेज द वे ही प्लेज। उसको कुछ बोल के ये नहीं होता कि मतलब ऐसा रुक के खेलना, ये करना वो करना। इनिशियली ही डज दैट, बट एक बार उसको पता चल गया कि अभी अपने टीम पे प्रेशर बहुत आ चुका है, तो वो फिर वो अपने शॉट्स शॉट्स मारना स्टार्ट कर दे एकदम से। Yeah, but the one thing that I was amazed that his way of playing works everywhere. Being it a एग्जैक्टली spin हाँ। wicket, be it a bouncy wicket, मतलब समझ में आ रहा है कि वो बंदे का टेम्परामेंट कैसा है, कि वो सिर्फ हार्श शॉट नहीं खेल रहा. वॉट एवर ही थिंक्स कि ये जाएगा, वो वहीं पे वो बैट घुमा रहा है. वी थिंक एट फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ फैन और क्या बोलते हैं ऑडियंस के वो एक हार्श शॉट था. बट दैट हम्म। वाजंट बिकॉज ही नोज व्हाट ही. अगर आप देख रहे हो तो 78 बॉल्स खेल के 37 रन. इफ दिस वाज अ इंडियन कंडीशन, he would be at 50 or 60 right now in 78 balls, आराम से right? आराम से। So he knew what he was doing. He knows what he has been doing, right? So we can't say it is a rough and tough play. He uses his mind very at that point and does the job that has been given to him. So यस। telling him to not to play like this is a fool's play actually. If anybody is trying to do that. यस। नहीं, कोई ट्राई नहीं कर रहा सब करने का। Yeah, and Dhruv Jurel also he actually played two fantastic fours at the third man, right? यस। That I like that those boundaries also. He only scored 11, but I guess that those were pretty good shots. मतलब एक confidence दिख रहा था उसके गेम में भी. He was also new, right, for the Australian हम्म। ground. यस, दिस इज आल्सो हिज So, फर्स्ट आउटिंग एट ऑस्ट्रेलिया। एंड ऑल्सो आई थिंक वो जो so प्रैक्टिस मैच खेला था, आई थिंक दैट मस्ट हैव बेनिफिटेड फॉर हिम, knowing the condition, basic conditions here. actually, yeah. So I guess all in all, not a good start, but actually play these three players who played fabulous. They showed that we are here. If our team is not performing at the mark, but we will be here and we will play those anchor roles. So you were Yes. saying कि चेतेश्वर पुजारा नहीं है तो KL Rahul will be there in his place, right? So, do you think if he plays like this in the second inning also, he will get the chance to play all the test games in Australia? I think he will be given the first preference, na? Because he also technically he also has the experience of playing in Australian conditions, right? So in the future matches, I think yes, उसको मिल जाएगा chance आगे. If he has to prove this in the second innings, I feel. First inning में तो उसने prove कर दिया कि मतलब he can play that kind of inning. So यही momentum अगर वो second innings में carry करके एक बड़ा score लगा देगा,
मतलब एक 50 भी लगा देगा फॉर एग्जांपल, कंसीडरिंग द कंडीशंस नाउ, सो दैट विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर हिम ओनली। ये मतलब उसका Right. एक स्पॉट तो फिक्स हो जाएगा टीम में पर्सनली, एंड ऑल्सो फॉर द टीम एज वेल, कि मतलब एक जो लीड अभी मिलेगा कल, डिपेंडिंग इंडिया कभी ऑल आउट करता है उनको, उसके ऊपर जो भी रन्स हो जाता है, सो आई थिंक दैट विल, द मेन You जॉब विल बी इन द हैंड्स you ऑफ केएल राहुल टू गिव दैट स्टार्ट, आई फील। you have high hopes, I guess. नहीं, अभी इतना 67 तो कर दिया, तो उसके उसके ऊपर और क्या ही होगा, Yeah. ऐसा लगता है, बट यस, यू I नेवर नो I बिकॉज। was asking you that question about KL's team spot because there are two players to come, right? Uh, Rohit Sharma and Shubman Gill. They will be coming back for second test, right? So looking at that, I'm asking you, will KL Rahul be in the team? Will he be looked as a permanent spot for Australian series? Because Devdutt Padikkal is there, Nishit Kumar, Ritesh Kumar Reddy is there, and one more player, right? He was Harshit Rana. हम्म So they have to prove themselves before Rohit Sharma and Shubman Gill enters, right? Because they have their spots locked in, Rohit Sharma and Shubman Gill. हम्म सी फॉर क्या वो है ना कि आई फील कि सी हर्षित राणा, बुमराह एंड सिराज का स्पॉट तो फिक्स है टीम में, क्योंकि फॉर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन तीन बॉलर, फास्ट बॉलर तो चाहिए। One more thing. हाँ। Shami is also flying to Australia. अरे यार, गेम हो गया रे अभी तो। So we don't know for sure, but those are the rumors, or I हम्म guess some news articles say that Shami is also flying to Australia for the second test. रोहित भाई तो 24th को आएंगे, उधर डेट भी आ चुका है, उधर 24th को पहुंचेंगे। यस, ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित शर्मा फॉर द सेकंड बेबी। Yeah, that is congratulations for him, यस and he is baby be happy and healthy. यस। आई थिंक कमिंग बैक टू योर पॉइंट ना निखिल, वही है कि गिल और रोहित विल कम इनटू द स्क्वाड, आई थिंक पडिक्कल एंड फॉर सम रीजन जुरेल विल हैव टू मेक वे फॉर देम, इज व्हाट आई फील। एंड आई थिंक अगर केएल राहुल नहीं परफॉर्म करता ना फॉर एग्जांपल आगे जाके, सो वही रोटेशन हो जाएगा शायद, कि पडिक्कल राहुल या पडिक्कल राहुल जुरेल, उसमें वो क्या बोलते हैं, तो स्विच होते रहेंगे। बट यस, फॉर नाउ आई कैन सी कि राहुल का जगह तो है टीम में फिलहाल, नेक्स्ट टेस्ट के लिए at least। So yeah, this was our batting performance, and bowling wise, Australia was the best at that time. They completely dominated uh, Indian team. They actually restricted Indian team to score from scoring 200. Actually, I don't know, but what I saw from the interviews of some podcasters, they were saying that 200 was the par score over here in हम्म the first inning. So actually, Australia restricted India from scoring 200 at this pitch. And yeah, what are the performances? Who mostly highlighted over here? Rohit. Sorry, Mohit. I wanted to talk to Rohit Sharma. बुलाएंगे बुलाएंगे, रोहित भाई को भी बुलाएंगे। Sorry, hello, Rohit. रोहित भाई फोन उठाओ। Yeah, moving on with the bowling performance. Yes, I think for bowling performance, credit for Mitchell Stark and Hazelwood actually. Not in terms of the number of wickets that they have taken, but the pressure which they created in the initial overs. क्योंकि they were the ones who were not giving the Indian batsmen the chance to score runs freely up until Pat Cummins came on, but came on के अलावा brought himself on, क्योंकि वही तो कैप्टन है तो। Yes, apart from that, Stark and Hazelwood for me were the pick of the Australian bowlers, because the way they bowled, they were bowling in that one channel जो है उसमें बॉल डाल रहे थे, एंड they were not giving the, as I mentioned, कि वो रूम बोलते हैं ना उसको, रूम नहीं दे रहे थे रन्स करने के लिए, बट yes, for me Mitchell Stark and Hazelwood were the top picks.
So yeah, Hazelwood took those two top orders, Padikkal and Virat Kohli, and after that he also took out Harshit Rana and Bumrah, the two batsmen on the lower order. So yeah, those were the 4 wickets he took. Then Mitchell Stark, from the start, he showed how the pitch was going to be for the bowlers, and it looked pretty good from the start only. He took Jaiswal in the beginning, and then he took KL, or he was given out. I don't know, but yeah, it is his wicket. So yeah, these 2 wickets were taken by him. Open to interpretation. And yeah, Pat Cummins was he bowled and he took 2 wickets, but he was also actually उसको बहुत पेला है राइट उसको साइलेंस कर दिया. उसको साइलेंस कर दिया एक्चुअल में yeah. And Nathan Lyon, he didn't take any got any wicket, but yeah, उसको भी अच्छा खासा दे दिया है कैच की मतलब the pitches for the fast bowlers, that is what was shown over here when Nathan Lyon हम्म. came to bowl. Yes, and Mitchell Marsh also came. He took 2 wickets, 5 overs, only 12 runs. हम्म. वही नेथन लाइन को शायद वो लोग ट्राई कर रहे Yeah, थे कि so पिच में स्पिन है या नहीं देखने के लिए. yeah, actually, if you see now historical figures again, let me bring it back to my screen. Actually, मैंने इसके ऊपर बहुत research किया था, but for some reason we couldn't make that video. Yeah. Yeah, so उसमें भी क्या है ना, Nathan Lyon has a good score record over there. He had taken 27 wickets till now फ्रॉम 2018 का सीरीज से अभी अभी तक 2018 2019 का सीरीज से अभी तक ही हैज टेकन ओवर अराउंड 27 विकेट्स इन पर्स ग्राउंड मतलब सिर्फ इंडिया के अराउंड नहीं, अलग 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 टीम्स के अगेंस्ट. सो ही इज द टॉप विकेट टेकर ओवर देयर. सो आई गेस दे वांटेड टू ट्राई कि हाँ हो रहा है क्या, स्पिन नहीं हो रहा है, बिकॉज ही नोज अगर स्पिन हो रहा है तो ही वुड हैव बीन द प्रोमिनेंट बॉलर ओवर देयर. Yes. So yes, with that, India were bundled out for Yeah, moving 150. forward to moving Yes. forward to the highlight of our day. Yes. The highlight for the Indian viewers, Indian fans, actually, we could say, because we were terrified. India got all out at 150. We were thinking, yeah, 250 for 300 would have been a respectable target over here. But yes, Mohit, you are the one who was watching. I wasn't there to watch this game. So yeah, take it away. Yes. So with Indian innings done. So Australia started the innings with Usman Khwaja, and also for Australia there was one debutant who came out to bat as an opener. It was Nathan McSweeney. So yes, debutants on both the sides, and yes, he was the first first one to depart. Bumrah bowled that in swinger. आई थिंक फॉर सम रीजन वो अंपायर ने नॉट आउट क्यों दिया मुझे अभी तक नहीं समझा कि वो स्टंप के सामने था भाई वो एलबीडब्ल्यू. केटल बोला वाज लाइक नो. Right. एंड वो जो डीआरएस ले रहे थे ना उसके पहले जस्ट मैं घर पे आ गया था तभी देखा तो बुमराह ऐसा कर रहा है. बोला अरे बट यस. So one more thing, Mohit, हाँ. bowler being a captain, how much power does he have over the TR situation? यस यस आफ्टर Yeah, दैट. it's- Yes, Bumrah was the key destroyer for we can say of the Australian batting today. And yes, these are the moments actually हम लोग जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो वर्थ हो जाता है. Yes, so 800 with रुपए यही पे हम लोग के ये होते हैं. yes, worth it. So with that, yes, Bumrah took the first wicket of the debutant McSweeney, who was playing pretty much an attacking innings. 13 balls में he scored 10 runs, 2 boundaries. And then came the man Manas Labuschagne for this. It was looking like कि वो 100-200 साल से सिर्फ बैटिंग कर रहा है उधर. एंड कब से खेल रहा है बट भाई के बैट पे बॉल नहीं लग रहा पता नहीं क्यों.
पता नहीं एंड यार। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, इट वाज अ क्रिमिनल इनिंग्स। बट एनीवे, द दैट वाज अ प्रिटी लॉन्ग इनिंग्स, जो ऐसे लग रहा था कि नहीं खत्म होने वाला। और यस, उसके बाद बुमराह टुक द विकेट बट ऑफ। हाँ yes, यस। Mohit, but while he was batting, whenever he was placing the ball, मतलब ball hit हो रहा है, so वो चिल्लाता था, no run, no run. So ये वो was he खुद को बोल रहा था। manifesting कि कोई रन करने वाला नहीं है? वो कि खुद बता को रहा था पहले रिमाइंड भाई कर रहा मेरे था। से नहीं। So it is his actually, वो अपने खुद को काम रखने के लिए करता है कि कुछ पता नहीं, but he does this in every series I guess. मतलब यस। मैंने जितना देखा है उसका फनी मोमेंट्स, तो दिस यस। इज देयर इन एवरीथिंग एवरीवेयर। यस, वो स्टीव, वो एक है कि मतलब ऐसे देखा गया है कि वो स्टीव स्मिथ की तरह बिहेव करता है। क्या ही अभी एक्चुअली बोल बट सकते हैं। टुडे स्टीव स्मिथ डिडंट हैव द चांस टू बिहेव लाइक दैट। गोल्डन डक। गोल्डन डक। एंड ऑल्सो एक और एक स्टैट आया था, बुमराह इज द सेकंड बॉलर टू डिसमिस हिम फॉर अ गोल्डन डक आफ्टर डेल स्टेन। ओ, प्रीटी गुड थिंग फॉर हिम। तो यस, विद दैट विकेट बुमराह वाज ऑन अ हैट्रिक। एंड वो बंदा आ गया क्रीज पे जिसका क्या बोलते हैं, पूरे इंडिया को इंतजार। जिसपे यस। एंड फॉर मतलब बुमराह ने जो बॉल डाला ना उसको, हैट्रिक बॉल, दैट वाज एक्चुअली परफेक्ट। बस वही था कि उसका एज लग गया, नहीं तो दैट वुड हैव बीन अ हैट्रिक एंड वो एलबीडब्ल्यू हो जाता था, क्योंकि उसने बॉल ऑलमोस्ट मिस कर दिया था। वो जो यॉर्कर डाला था, फुल पेस में उसने यॉर्कर डाल दिया था उसको। बट बट यस, ही सर्वाइव्ड फॉर जस्ट सम रीजन, जस्ट लाइक जस्ट 19 जस्ट टू नवंबर। just to give a brief कि head is not for बुमराह। बुमराह कभी हेड का विकेट नहीं ले पाएगा। दैट हैज बीन प्रूवन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ 2023। कितना भी अच्छा बॉल डाल दो, नहीं आएगा। वो बट नहीं या, देगा। द न्यू bowler, he did the job. He was on his second over, right? यस। हाँ, And he सेकंड took सेकंड the या थर्ड wicket. ओवर ही था उसका। हाँ, उसको उसके पहले वाले ओवर में उसने 2 बाउंड्रीज मारा था। तो उसको Right, भड़क गया था, वो yes. हर्षित राणा उस पे भड़क गया, वो आते ही हर्षित राणा उस पे भड़क गया। उसको जा जाके ना लुक्स दे रहा था वो खाली। Yes. So actually, if you see, अभी ये मेरे को पता है क्योंकि I when you told, you texted me कि यार Travis head has fallen करके, I went to my colleague and I saw, तो मेरे को हाईलाइट दिखा भाई क्या हुआ वो एक विकेट का। तो उसने उसके लिए बंद किया एंड देन अगेन ही शोड मी कि क्या हुआ ट्रेविस हेड के बट क्या बॉल था वो, परफेक्ट बॉल था जो वर्ल्ड कप में साथ। डाला है ना सबने, वही बॉल था, बस आज जाके वो सबने स्टंप पे लगा है। he gets out on that perfect यस, delivery, right? वो ही एक ही डिलीवरी है। वही I वही guess बॉल है। I don't I am not an analyst over here, but यहाँ पे एक चीज अलग की रहेगी हर्षित राणा is that he he bowled that with a wobble swim, the seam, हम्म। sorry. तो वो परफेक्टली उसको समझा नहीं, परफेक्टली उसको समझा नहीं। हाँ। परफेक्टली इम्परफेक्ट। But अरे that was a वो है highlight. क्या जो तू बोलता है ना, डबल क्या, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। Oh man. But that was a highlight moment for all the Indian fans actually. Travis had getting out with Dandaka. डांड का, ये इन इन मुंबई भी से डांड का। Dandaka. बस वो एक्चुअली परफेक्ट कभी होता मालूम है, मतलब मुझे भी फास्ट बॉलिंग, आई एम एडमायरर ऑफ फास्ट बॉलिंग। वो परफेक्ट कभी होता मालूम है, जब वो स्टंप उखड़ के ऐसा 2-3 टप्पा खा के Oh पीछे man, जाता ना। वो वाला ना सही लगा था। But he is not that of a fast bowler, right? हर्षित राणा हाँ। इतना फास्ट नहीं डालते। हाँ, मेरे घर पे भी एक्चुअली हो गया था, जब भी मतलब मेरी मम्मी फोन पे बात कर रही थी किसी से, एंड Yes, मैं yes, बगल में ही yes. बैठा था मैच देख रहे। जब भी हेड आउट हो गया, मैं चिल्लाई, "Yes! निकल निकल।" मम्मी बोल रही थी, भाई Uh, रुक जा, रुक जा, मैं फोन पे।
Yeah, but in this all we forgot Usman Khwaja. He's Yes. actually coming from a good form right now. Uh, he was the main. I guess I was fearing him actually. वो starting से जो खेलता है for Australia, he gives a good start to Australia. But he getting out on 8 runs was actually a good thing for India. And Hmm. Virat Kohli taking that catch also must have given him the confidence because earlier he he did something horrible, man. He did something horrible. बट लकीली लबुशेन का वो ड्रॉप सिर्फ 2 रन का पड़ा. But it costed us 40 balls, man. बोरिंग. नहीं, नॉट बोरिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन बट नॉट फॉर अस बिकॉज अरे मैं उस But पे बाद में actually, आता हूँ, उस पे मैं बाद में आता हूँ, जो लबुशेन का इनिंग्स है ना, पहले ये कर लेते हैं, बाद में आते हैं, क्योंकि मैंने लाइव so देखा है वो Usman, 52 बॉल तो. so Yes. Usman Khwaja bought out cheaply actually. Eight runs, eight runs in 19 balls. After that, actually I was also afraid of Manas Labuschagne being on the crease for so long. But he also got out cheaply, not in the bowling perspective, but in the runs perspective. I'm saying in the हाँ. balls perspective, he played 52 balls, and after अच्छा, देर इज you were the one. हाँ, देर इज वन स्टैट फॉर लबुशेन की, दिस वाज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रन्स ही हैज स्कोर्ड आफ्टर फेसिंग 50 बॉल. एंड ये बताते थे ना, कमेंटेटर पे शायद गिलक्रिस्ट था, उसको भी हंसी आ रहा था, उसके टोन से समझ रहा था कि मतलब अभी वो उसको क्यों हंसी आ रहा था वो नहीं मालूम, बट Yeah, यस. हाँ. so when he scored those valuable 2 runs, everybody went bizarre, right? Even when he scored यस. his first run. यस, व्हेन ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट रन, द क्राउड, जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड था वो, दे वर क्लैपिंग, स्टैंडिंग Standing. ओवेशन मिला उसको. यस. Yeah. Other than that, there was no such. मतलब ट्रेविस हट जाने के बाद आई वाज अगेन फियरिंग कि पैट कमिंस और मानस लबुशेन एक साथ ना बैटिंग करे. So यस. that didn't happen. वो आउट होने के बाद पैट कमिंस आया. So that was a bit. मिचेल मार्श भी था रे बीच में. अच्छा, ओके. यस, ठीक है. So yeah, you can talk about him. I actually don't have any frame of reference right now because I didn't see that any. फिर मुझे भी इतना याद नहीं है रे. याद ही नहीं है मेरे को बोल रहे. नहीं नहीं, मैं तो मेंशन कर रहा था कि मतलब वो भी था बीच में, हु कुड हैव प्रूव टू बी सम थॉर्न फॉर अब इंडिया. लुकिंग एट द हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव या फिर अभी जो मैचेस चले उसके ऊपर देखा जाए तो वी वर एक्चुअली सेइंग कि नहीं बोथ ऑफ द टीम्स हैव होल्स इन देयर बैट्स राइट नाउ, राइट. दोनों की टीम वो दोनों टीम्स के बैट्समैन के बैट्स में होल्स है which because of which they are getting out pretty quickly. But these three or two batsmen from Australia are very dangerous, right? Pat Cummins, Manas Labuschagne, uh, Travis Head surely, and Khwaja being in a good form right यस. अच्छा, बट मिचेल मार्श का वो कैच तो इसने केएल राहुल ने बहुत अच्छा लिया था स्लिप में, इट वाज now. वेरी लो. Yeah, very low, yes. अरे वो इससे Personally, याद आया, लबुशेन का जब भी कैच ड्रॉप हुआ ना, तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बाजू वाले फील्डर ना निकल गए सेलिब्रेट भाग करते. गए. बुमराह Yeah. बुमराह ने अपना सेलिब्रेशन वो लबुशेन के फेस पे जाके चालू. तो बाद में कोहली बोलता है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको. I guess Padikkal was only was the one player who उसने देखा रहे ये छोड़ दिया करके ये वापस फेंक रहा है मैं बॉल. अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता. Oh man. यस. यस, ऑल्सो द साइलेंसर वाज साइलेंस्ड वंस अगेन बाय बुमराह. वो भी एक विकेट मतलब क्या आया. बुमराह ने टिक लिया ना उसका भी विकेट बुमराह ने या लिया, वो बहुत बैट क्या है. बहुत बैट घुमाने देख रहा था बुमराह के सामने. मतलब यू बीइंग अ कैप्टन शुड नो राइट कि किसके आगे करना चाहिए किसके आगे नहीं करना चाहिए. आई नो देयर देयर शुड बी
मतलब बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, बट यू नो व्हाट यू हैव बोल्ड इन द लास्ट इनिंग, तो तुम लोगों को पता है कि किसके सामने करना चाहिए ये सब कीड़े कांड, बुमराह के सामने। कीड़े कांड। यस हाँ। Also, Pant was the first player in the game to step out and hit a boundary. मैन वो वो भी मतलब उससे उसका पैट अलग कमिंस को ही ही है। मारा है, पैट कमिंस को। हाँ, मतलब it went for a four, right? But it would have been a six if the थोड़ा ऊपर था ना, बैट के थोड़ा ऊपर लगता था ना, वो हाँ, सिक्स पे ही था। वो टो वो पे लग गया एकदम था। नीचे लग गया, हाँ। बट कंसिडरिंग टो पे भी लगा, वो क्या पावर था वो शॉट में। बहुत पावर था, वही तो बोल रहा हूँ, अगर वो थोड़ा ऊपर था इट वाज अ सिक्स। क्या वो साइड साइड स्क्रीन तोड़ के चले गया था। And hitting boundaries like fours in the Perth ground, मतलब नहीं, बहुत इजी काम नहीं है। अगर वहां पे बॉल हिट हो गया ग्राउंड पे, इट गेट्स स्लो प्रिटी क्विक, मतलब वो ऐसा हिट हो गया तो एकदम आराम से ही जाएगा। यस इट डजंट गो फास्ट टू द बाउंड्रीज। Yeah, but at the end, actually, Alex Carey played well. He, he started looking aggressive actually. And again, Mitchell Marsh also played a four, right? So वो भी एक बहुत अच्छा बुमराह को मारा, right? डोंट हाँ, रिमेम्बर किसी को आई बुमराह थिंक को हाँ मारा। बुमराह को ही मारा। वो भी उनका भी बाउंड्रीज ना एक्चुअली इफ यू सी ना थोड़ा बहुत मतलब मेजोरिटी इवन इंडियन इनिंग्स में भी कट लग के जा रहा था पीछे गली गली एरिया में। तो वही है कि Right. पेस इज पेसी विकेट है ये। सो आई डोंट नो कि आगे जाके खराब होगा विकेट या नहीं, बट फॉर नाउ एटलीस्ट इट लुक्स लाइक फास्ट बॉलर विल बी डोमिनेटिंग द गेम। एंड मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि कल या फिर संडे सुबह तक मैच खत्म हो जाएगा ऐसे लग रहा है। बट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग विल इंडिया बैट इन द सेकेंड इनिंग्स। एक्चुअली मुझे भी वही फियर है कि सेकेंड इनिंग में वी हैव टू स्कोर गुड, बिकॉज हर एक गेम फर्स्ट इनिंग जैसा नहीं होगा। फर्स्ट इनिंग में बुलर्स हैड अ प्रीटी गुड grip on the pitch, but we have seen it in Bangalore also, right? कि फर्स्ट इनिंग में कुछ अलग हुआ, सेकेंड इनिंग में पूरा गेम ही चेंज हो गया था। सो सो दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्टेड एक्चुअली कि इट विल प्ले गुड फॉर बैट्समैन, थोड़ा गुड नहीं, बट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एंड दे विल हैव टू स्कोर अराउंड 200 250 और 300 का स्कोर होना ही चाहिए ऑन यस दिस ग्राउंड। यस। ऑल्सो निखिल व्हाट डू यू फील अभी फिलहाल द इंडिया हैज एन 83 रन लीड करेंटली as of end of today's play. So, how much lead do you think will India carry into the second inning? 80, बस 3 रन, तीन बस रन तीन में रन में ऑल। गुंडाळायचं 3 रन मध्ये. अरे 3 रन मध्ये सगळे आउट होणार बा, आता उद्या सकाळी येणार, बुमराह विल प्ले बुल एंड ही विल टेक दोज विकेट्स मैन। व्हाट डू यू थिंक? मेरे को तो वही लग रहा है कि बुमराह विल कम एंड टेक दोज विकेट इन द फर्स्ट ओवर और सो। Yes. Also, connecting question: Who will be starting the bowling tomorrow? बुमराह Bumrah for sure. For एक end से फॉर बुमराह तो श्योर। है. But the एंड other end, who do you think? एंड एक्चुअल में आई गेस हर्षित राणा या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भी दे नीतीश सकते, बट कुमार को हर्षित ओवर राणा नहीं है, दिया है ना आज? नहीं दिए, नहीं नहीं। नहीं दिए। But Harshit Rana and Bumrah, Siraj being unpopular today because uh, I don't know why, but I feel he is lacking that discipline that he was having in last 2 years actually. 2 साल से जो कंसिस्टेंटली डाल रहा था एंड ही वाज टेकिंग दोस विकेट्स, वो विकेट्स ले रहे हैं, बट वो उतना डिसिप्लिन नहीं दिख रहा बॉलिंग में। आई एम नॉट द वन हु शुड बी टॉकिंग अबाउट these things, you should be talking about this Yes. because I am not a bowler man। डिसिप्लिन वगैरह का बात में नहीं हो सकता। यस बट इफ यू सी ना निखिल, मैंने शायद पहले भी बोला ये अभी थोड़े टाइम पहले कि बॉलर्स फ्रॉम बोथ द इनिंग बोल्ड वेरी डिसिप्लिन्ड लाइंस। डिसिप्लिन मतलब बेसिकली ना वो स्टंप के अराउंड ही रहता है, वो जो हाँ लाइन रहता है एंड वही लेंथ लाइन जो वो फुल एंड वो गुड लेंथ एंड वो स्टंप्स के फोर्थ फिफ्थ स्टंप तक का जो एरिया रहता है ना उतने में इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन लेंथ। ऑल्सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो बेसिकली यही यही रहता है कि द 3 स्टंप्स एंड
एडजेसेंट क्या विकेट उधर। थ्री स्टंप्स तो एंड या ऐसे अगर दो बाजू में अगर और लगा देंगे ऑफ साइड पे, तो वो जो एरिया है दैट इज द डिसिप्लिन, क्योंकि वहां पे अनश्योर रहता है बैट्समैन। राइट। सो ऑल इन ऑल, who do you think is the best bowler apart from Bumrah for India? अपार्ट फ्रॉम अब बुमराह तो हाँ, कोई भी बोलेगा बुमराह ही बोलने वाला हो, आई कोई थिंक भी रहने दे बुमराह। बाय द इम्पैक्ट ना, बाय द इम्पैक्ट आई थिंक हर्षित राणा वाज इम्पैक्टफुल टुडे। सिराज ने भी लिया है विकेट्स नो डाउट, बट मोर इम्पैक्ट जो है वो आई थिंक हर्षित राणा ने भी क्रिएट किया विद हिज पेस स्पेशली। उसने भी वो पेस से ना थोड़ा Uh, बहुत बीट वगैरह किया है। I have a counterpoint for you. हम्म। The stats. The stats say he bowled 8 overs, gave 33 runs, and took one wicket and one maiden. And Siraj bowled 9 overs, 17 runs he ओके, gave, हाँ, सॉरी and सॉरी, took मैं two उल्टा wickets. बोल गया। अरे, गलती से मिस्टेक हो गया था, सॉरी। No, but I am assuming you said Nitish Rana, sorry, Harshit Rana's name because the way Siraj has bowled for last 2 years, right? He has made a name for himself. तो जो अभी के टाइम पे वो जो बॉलिंग कर रहा है, द वे ही इज बॉलिंग, और वो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है उससे। हर्षित राणा बीइंग द, अभी अभी तो हम लोग देख रहे हैं उनको, राइट? तो यस, हर्षित राणा का इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी के लिए। सो वॉट एवर इज डूइंग, वो अच्छा ही है, ऐसा बोल अच्छा रहा ही हूँ। है। ऑल्सो देर इज अ थिंग गोइंग ऑन कि हर्षित राणा रिमाइंड्स ऑफ उमेश यादव। सॉरी यार, देखा ही नहीं वो, हर्षित राणा का बॉलिंग ही नहीं देखा है। अच्छा। कल हाँ। कल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, कल का हाँ, पूरा इनिंग देखूंगा। यस, पूरा ऑल्सो देर दिन इज बैठ के अनदर उसको स्टैट एक्चुअली। ब्लो आउट हो। हाँ, एक स्टैट आया है क्रिकबज़ पे कि there have been only 94 days of play where the ball seemed on an average more than 0.79 degrees for seamers। 94 days है। बहुत और टेक्निकल है रे ये, बट ऑल्सो निखिल, कितना विकेट गया आज? 150 इंडिया ने किया, 217 रन में 17 विकेट गया आज, आज के डे में। सो यस, क्रेडिट टू pretty good bowlers game. फ्रॉम बोथ द टीम्स एक्चुअली। ऑल्सो बुमराह को उसका फिफ्थ विकेट भी मिल जाता है लास्ट बॉल पे, अगर तूने लास्ट बॉल ऑफ द डे देखा रहेगा। नहीं देखा ना। अरे उसने लास्ट बॉल ऑफ द डे कमेंट्री पे भी वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट बॉल बुमराह क्या डालेगा, यॉर्कर डालेगा, बाउंसर डालेगा, स्लोअर बॉल डालेगा। उसने स्लोअर बॉल डाला कटर जैसा, एंड दैट बॉल हाँ ऐसे हाँ लगा हाँ कि हाँ हाँ, वो ग्रिप हो गया। हाँ। हाँ, एंड बुमराह हाँ। और स्टार्क दोनों एक दूसरे को देख के हंसे जा रहे हैं। सो इट केम लाइक कि वो कैच हो सकता था, राइट? बट हो वो सकता है, थोड़ा बट वो पीछे बहुत रह गया। आगे था। हाँ, हाँ, उसने भी ना, वो भी बहुत स्मार्ट है रे, उसने हल्के हाथ से खेल के निकाल दिया बॉल। थोड़ा स्ट्रांग हल्के हाथ हैंड से से रहता खेला ना नहीं। तो हाँ, ऊपर हाँ, जाता था बॉल। ऐसा था वो, राइट राइट, ही कुड हैव गॉटन आउट एट दैट। यस, सो Yeah, so overall, what do you think about Bumrah's captaincy right now? बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग ना, देयर इज अ बल्क गोइंग अराउंड कि जो सुनील गावस्कर ने कमेंट किया था, याद है कि रोहित शर्मा Yes. लीव से आ रहा है तो बुमराह को ही कैप्टन रखो करके, कैप्टन चेंज मत करो। तो लोग बोल रहे कि अभी बुमराह को ही कैप्टन रखो, रोहित आएगा तो उसको खाली खिलाओ। Yeah. बट ये ऑल इन ऑल एक्चुअली, Yeah. इफ यू सी ना, बुमराह का कैप्टेंसी वाज प्रीटी गुड बिकॉज आई थिंक बीइंग अ बॉलर मेक्स यू अ बिट अवेयर ऑफ द गेम ऑल्सो, कि अभी 150 रन ही है तो वो हिसाब से उसका थिंकिंग हो जाता है, राइट। हाँ, बैट्समैन भी सोचता है कि ये लोग ऊपर का रन बनाएंगे, हम लोग को वापस आके उतना करना पड़े, वो भी एक रहता है। बट आई थिंक बुमराह का कैप्टेंसी एक अभी तक, आई थिंक एक ही दिन हुआ है, बट यस इट लुक्ड वेरी गुड। मतलब एक डोमिनेटिंग एफर्ट लगा उससे, जो भी उसने चेंजेस, मतलब तीन ही बॉलर जो भी रोटेट किए तीनों को उसने, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। सो यस, दैट वाज प्रीटी गुड, जो पिछले सीरीज में एक्चुअली बहुत मिसिंग था।
न्यूजीलैंड वाले सीरीज में. So that looked very good, very good side for Bumrah's captaincy. So for me personally, on field तो चलो ठीक ही अच्छा ही किया उसने, but the off field things that he did, like जो risky लग रहा था at the start की नीतीश कुमार रेड्डी को कैप्टेंसी देना, या फिर टेकिंग वॉशिंगटन सुंदर ओवर रविचंद्रन अश्विन, Also Jadeja. राइट, also and Jadeja, yeah, both of them over them taking him, and also playing Harshit Rana, right? These were some risky moves, right? And I don't think if Rohit Sharma would have been there, he would have taken those decisions. He personally मेरा ख्याल है, I don't know, but ये personally मुझे लग रहा है कि those decisions, off-field decisions, would have been different if Rohit Sharma would have been the captain for this series, for right now. Yes. So yeah, good thinking from his end to, and on field to देख ही लिया. But yes, other than that, I personally don't think कि Rohit Sharma should be or should only be played as a player, हाँ वो तो है, बट क्या ही बोल सकते हैं. ओपिनियन सर, ओपिनियन जिसका भी हो. because people are just talking about the on-field captaincy, right? So on-field, तो Rohit Sharma does whatever he does, he does it good only, right? So I'm not saying कि on-field captaincy के वजह से you should say कि अरे उसने उसका उसको ही कैप्टनसी दे दो करके, बाद में सेकंड मैच में अगर he does something foolish तो उसके ऊपर बरसोगे बाद में, हाँ. राइट? हाँ, दिस इज व्हाट इंडियन फैंस आर, या फिर ओवरऑल सभी लोग वैसे ही है, बट इंडियन फैंस में ये ज्यादा है कि आप भी बोलेंगे कि यार इसको करने तो, अब तुम लोग ने चेंज क्यों नहीं किया, रोहित शर्मा को नहीं क्यों नहीं दिया कैप्टेंसी, ऐसा बोलने वाले भी बहुत लोग हैं. तो हम्म. अब ऑनलाइन बोलने वाले बहुत लोग हैं, पीछे वाले तो अलग ही है, ऑनलाइन बोल के करने वाले भी बहुत लोग हैं. सो या, personally if you ask me, I don't think that Rohit Sharma should be just played as a player, but decision wise जो ऑफ फील्ड डिसीजंस लिया, जो I think it was important decisions, and here this could be a blessing in disguise, because रोहित शर्मा को भी अभी मालूम पड़ गया कि अरे हाँ, ऐसा भी एक वे आउट है, या फिर ऐसा वो उसको मालूम था, बट अभी प्रैक्टिकली देख लिया है तो उसको भी अभी आइडिया आ यस. गया रहेगा. यस. तो भी आइडिया आ गया रहेगा अभी कि if he is not play, if he is not leading the team, so team will be in the safe hands. Yes. Also, एक one question Nikhil before we wrap up कि who do you think will be taking the remaining 3 wickets tomorrow? I know, but What do you think my answer is? हाँ, एक तो है, एक तो गारंटी है. I think personally Mumra ही सब विकेट लेगा. हाँ, बट हाँ, बाय द वे इज बॉलिंग ना. यस. तो मेरा कोई ऐसा ये नहीं है, स्टैट नहीं है, जस्ट आई विश कि बुमराह सब विकेट ले ले. आई एम नॉट सेइंग कि वो ही लेगा. आई विश दैट बुमराह वुड टेक दैट फाइफर एंड ही टेक्स ऑल दोस विकेट्स. बट या, हम्म. हर्षित राणा आल्सो हैज अ प्रीटी गुड चांस, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द डे में आप लोग को पता ही है, स्टार्टिंग पे 5 टू, ये इंडिया का कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ, 5 ओवर्स तो बहुत ये मिलता है, मदद मिलता है बॉलर्स को, बट इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस तो 25 ओवर्स तक मदद मिलता है. So यस. pretty good chance for every bowler right now. But I personally wish कि बुमराह को मिल जाए वो विकेट्स, एंड जल्दी से जल्दी मिल जाए. यस. I don't want to wait, see Australians bat for more time. वो किसी को नहीं चाहिए. Yes. So I think that's it for this one. We discussed the day one of the first test of the BGT, which has started today, and hopefully we'll come back tomorrow as well with the analysis of day two. Yes, There is hopefully. no promises, guys. There is no promises.
No, no, we'll come tomorrow. We'll to discuss tomorrow as well. निखिल नहीं आएगा तो भी चलेगा, हम लोग करेंगे. मुझे ही दे दिया ठेका. So Okay, yes, yeah. So that is it, guys, for first day of BGT. I know this is a pretty long video. We will try to keep it short from second day onwards. But yeah, there was pretty much everything to talk about, right? जैसे कि मैंने start में बोला, there is nothing much to talk, but there is many things. There are many things to talk. yes, So yeah, that is it. If you like our viewpoints, please like this video, comment what you didn't like, and also what you liked. And if you think anybody wants to hear us and they can enjoy us, please share this video to them and yes, subscribe for more such videos. कल भी वापस आएंगे. Hopefully, I will be there. Yeah, that's it, guys. Thank you everyone for watching our video and hope India wins. yes. Bye bye. Bye.